रेकी सीखने वाले हैं? Everybody knows. Is He there himself, anyone? he himself told in the evening that I am eager to learn. Wow, that's great. I didn't tell him anything actually. Wonderful, He just wonderful. read the It is messages very good. and It is very good for the students also when they perform healing for themselves. It is wonderful. It works miraculously, beautifully for them. All right, people are still joining. Okay, is there anyone who has any problem with the communication? Maybe sometimes in a flow, I just speak in Hindi, English, मेरा दोनों ही चलता है. So that ways I'm just asking. Otherwise, I need to take care of that. Okay, जो लोग भी कैमरा से स्टार्ट कर सकते हैं, please do that. I just want to see the smiling face of everyone. That's it, nothing else. Okay. चलिए स्लाइड की तरफ चलते. पीपल आर स्टिल जॉइनिंग. रेकी सीखने वाले हैं एंड I would like to give a brief introduction about myself. Myself, Dr. Malvita I. Jain, and I have learned Reiki when I was quarter 16 actually, 15 plus, तो ऐसे बोल सकते हैं. And I actually do not want to tell my current age, but still I just want to tell you that it's been 25 years. And I've been working, I was the youngest Reiki master when I learned this science. और काफी हीलिंग करी है स्टार्टिंग में. आई जस्ट डिड इट बिकॉज ऑफ द स्टडीज. आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 10 to 12 years. I was not able to continue that. But with my last organization, in fact, Reiki Healing Foundation, if you have heard of, so that is the world's largest Reiki organization. I have learned from Dr. N.K. Sharma and Dr. Savita Sharma. तो उन्हीं से रेकी सीखा है एंड आई एम देयर रेकी मास्टर. और उन्हीं के प्रोसीजर, उन्हीं की जो टेक्निक्स हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग बिकॉज दिस टेक्निक. कुसुमा जी, आपका जो स्क्रीन है बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है. दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी. मेरे को आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट इट इज ब्लिंकिंग. थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है. जस्ट look into this. All right, and this is my Reiki journey, but apart from that I have also learned many healing modalities, just like magnified healing, pranic healing, and a few more things. And apart from that, I'm a very logical person, so I just do these healing modalities only to help people. तो मेरा इससे कोई monetary terms, monetary benefit ऐसा कुछ उठाने का नहीं है. Neither I have taken this as a कोई भी मेरे को professionally I have not taken this as a career. I am a graphologist and a numerologist, so I'm working in these. In fact, I am also an MBA in marketing and HR. So I worked with MNCs quite a long. और वो छोड़ने के बाद I just followed my passion, and my passion is to help people. जिस भी तरीके से help कर सके, तो I just try to do that. ठीक है, तो रेकी के बारे में is there any idea? आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो मेंशन किया है कि you have little bit of idea about this. This is the healing science energy, but let's make it an interactive session. So let's talk about this. Yes, anyone? Unmute करके आप बोलिए आराम से. Positive of things. Sorry? Everything positive. When we talk everything positive, we are positive about everything. Yes. Is it? Yes, of course. When you perform healing, when you do healing for yourself, you tend to become positive. We are just learning all these sciences just to become positive. And positivity means what? Being healthy is a positive state of mind, emotions, and physical level. ठीक है, अनोइंगली चीजें काफी बिगड़ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आई एम अनटच विद दीज साइंसेस, दीज थिंग्स. मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल व्हेन वी नो द वे, वी जस्ट फॉलो दैट. ठीक है. एंड एनीबडी एल्स? Anybody else? Yes, Yeah. Ranjana ji boli. I think Reiki is a science of distance healing, and wherein we can get magical results, and but only and only if we are, we are pure, like we are healed ourselves. Only then we can transmit that energy. So first, most important is to heal ourselves, and then we can do that service to others. You just note down this question.
you just note down this question, whether we are healed or not healed. Can we perform healing? If we are not healed, if I am not healed today, can I be able to perform healing? So just note down this question, I'll answer it. ठीक है, अभी बीच के अंदर स्लाइड्स के अंदर ही आई एम गोइंग टू आंसर दिस, बिकॉज दिस इज द there are so many people, they have a lot of doubts about this, and I don't know how it has been circulated, but when we learned, we were just clear about that. We were just learning the Usui method, the main method which was coming from the Usui. ठीक है, Usui जो सिस्टम है, that is the founder of that is the inventor of the Reiki. उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, he worked on that. So on the basis of that, I'll just quickly take you to the slide and we'll start the session. सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है? ऑलराइट, सबसे पहले रेकी के बारे में जानते हैं। रेकी है क्या? रेकी दो शब्दों से मिलके बनी है। दिस इज द जापानीज वर्ड, दिस इज द जापानीज वर्ड, दिस इज द जापानीज टेक्निक। अनम्यूट कर लीजिए जिन लोगों का भी ओपन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी अदर मॉडरेटर हियर। ओके, तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलके बनी है। ये जापानीज टर्म है रेकी। रेकी का मतलब होता है, रे मीन्स डिवाइन पावर। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज आप मैनेज कर लीजिए। आई एम नॉट एबल टू डू इट। यहाँ पे मेरे को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, डन। Okay, so ये simple Reiki term है। Reiki is what? It is a divine energy. It is not our energy, and it is a life force energy. The immunity system we talk about, the energy we talk about, किसी भी चीज की जो immunity होती है, that is the life force energy, जो किसी भी चीज को चलाने के लिए important होती है। And universe is full of that kind of energy. अगर हम ब्रह्मांड में भी देखते हैं, अगर जो लोग प्राणिक हीलिंग भी करते हैं, प्राणास, हम जो फ्रूट खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, वाई वी आर सेइंग दैट अंकुरित खाना चाहिए, स्प्राउट होना चाहिए, लाइव फूड के ऊपर क्यों रिकमेंडेशन ज्यादा जाती है? बिकॉज दैट हैज द प्राण शक्ति। तो यहाँ पर हम प्राण शक्ति, जो यूनिवर्स की प्राण शक्ति है, उसको हम अपने अंदर लेने का ये जो प्रोसेस है उसको करते हैं। दैट इज द, इट इज, रेकी इज द सेफेस्ट मोड ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। ये अपने आप ही automatically tend to make you positive and the spiritual person, because when you get this Reiki divine energy, when you invoke this divine energy and you heal yourself, you tend to become that spiritual person. तो ये सबसे पहले तो हमारा इम्प्रूवमेंट करता है, खुद का इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, जब भी हम इन्वोक करते हैं, चाहे हम अपने लिए इन्वोक करें, इन्वोक मतलब उसको इन्वाइट करते हैं, हम रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं टू हील आवरसेल्फ और टू हील अदर्स। ऑफ कोर्स वो प्रोसेस हम लोग बाद में समझेंगे, बट यस, ये एक टेक्निक है। इसके अंदर हम माइंड, बॉडी, सोल की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, बॉडी, सोल, दैट मींस इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल। इट हील्स ऑल दोज लेवल्स। और ये सारे लेवल्स आते कहाँ हैं? ये हमारे चक्रास से आते हैं, बट यस, इट वर्क्स मैजिकली ऑन दैट पार्ट। अगर हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है, बायोलॉजी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चक्रास के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आपको जैसे रेकी आती है, इसके अंदर कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती है। वेदर यू आर एजुकेटेड, यू हैव लर्न समथिंग और यू हैव नॉट लर्न समथिंग, आप कोई किसी भी मोडालिटी के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, डजंट मैटर। इट इज जस्ट योर इंटेंशंस and the catching the vibrations and just passing it on to yourself and to others. So अभी जो रेकी लेवल 1 है, उसके अंदर हम लोग खाली अपनी हीलिंग अपने हाथों से टच करके खुद को करना और दूसरों को हीलिंग देना, वही टेक्निक हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो ये टेक्निक बिल्कुल सेफ है। दिस इज द सेफेस्ट टेक्निक ऑफ द हीलिंग एनर्जीज। और इस एनर्जी की जो शुरुआत करते हैं, तो दिस इज द मदर, रेकी इज द मदर ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज। जितनी भी हीलिंग एनर्जीज या हीलिंग साइंसेस आज के टाइम में अगर आप देख रहे हैं, तो दैट इज, रेकी इज द मदर ऑफ दैट। और रेकी इतने सेफ है कि इससे हमें कभी भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बीइंग एडेड, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, इट इज जस्ट अ कंफ्यूजन, कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर किसी के थ्रू आती है, तो मे बी किसी का एक्सपीरियंस अगर कुछ खराब रहता है, तो मे बी दे आर नॉट एबल टू डील विद दैट, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? आई होप, फाइन। चलिए, ओके, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये है मास्टर उसुई, डॉक्टर मिकाओ उसुई। एंड हु इज ही?
Actually, he is the founder of Reiki. He is the one who invented Reiki, and how he did that, इन्होंने काफी वर्क किया अपनी मोडालिटीज के ऊपर, इन्होंने काफी काम किया, एंड ही वाज हिमसेल्फ एंड यू नो इंटरेस्टेड इन द मेडिसिन एंड द साइकोलॉजी. इन्हीं सारी थ्योरीज के ऊपर ये काम करते थे. ही प्रमोटेड, यू नो, ही वांटेड टू लर्न, कि इनको ये पता था कि जीसस जो थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, वो लोगों को हाथ रखते थे. यू माइट हैव हर्ड इन मेनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज कि वो हाथ रखते थे और लोग रिकवर हो जाया करते, लोग ठीक हो जाते थे. एंड इनफैक्ट कोई भी देवी देवता या फिर कोई भी गुरु या स्पिरिचुअल पावर्स जो रहती है, दे डू इट लाइक दिस ओनली. दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि वो किसी को भी अगर अपने प्यार से सहलाते भी थे या सर के ऊपर हाथ रखते थे, तो दे टेंड टू गेट द ब्लेसिंग्स. तो वो ऐसा होता क्या होता है. ही वाज सो मच क्यूरियस अबाउट दैट, और उसी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए, टू लर्न दैट, ही स्टडीड अ लॉट. उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने काफी कंट्रीज को भी ट्रैवल किया, काफी जगहों पे, काफी लिटरेचर भी इन्होंने काफी पढ़ा. काफी चीजें पढ़ने के बाद, और इनका जो एक बिलीफ सिस्टम था कि देयर इज समथिंग विच वी आर अनअवेयर ऑफ, सो ही वर्कड ऑन दैट एस्पेक्ट. तो ये डॉक्टर मिकाओ उसुई की ही देन है, और आज हम उसी को इसी हीलिंग मोडालिटी को हम आगे उनकी ही उसमें आगे हम लेके जाते हैं. तो आप जो भी रेकी सीखता है, तो आप ये सबसे पहले तो एक चीज मान ले कि यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट दैट रेकी हैज सेलेक्टेड यू. जैसे हम बोलते हैं ना कि माता के दरबार में जाना है, तो माता का जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा पाएंगे. तो दिस इज द सेम थिंग. रेकी आपको बुला रही है, रेकी ने आपको सेलेक्ट किया है. इट इज योर इंटरनल कॉल दैट यू हैव जॉइन दिस सेशन. सो वी आर द लकीएस्ट पीपल. आज हम रेकी का अट्यूनमेंट नहीं करेंगे, अट्यूनमेंट कल मॉर्निंग में होगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा प्यूरिफाइड एंड अच्छे तरीके से बैठेंगे. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑरा, हमारा एनर्जी फील्ड, और हम रेकी के बारे में बेस थोड़ा सा समझेंगे. ठीक है. डॉक्टर मिकाओ उसुई का, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और उनका डेवलपमेंट ऑफ रेकी कैसे हुआ, तो ये होता ऐसे है कि माउंट कुरामा, ये एक्चुअली जापान के अंदर ही एक माउंटेन है, जिसके अंदर 21 डेज तक इन्होंने मेडिटेशन करी. और उस मेडिटेशन के अंदर ही वाज जस्ट सर्चिंग. अब होता है ना कि किसी को धुन लग जाती है, तो ही वाज जस्ट लाइक दैट पर्सन, कि इनको धुन लगी हुई थी कि कुछ ऐसी ढूंढनी है, कोई एनर्जी, ऐसी पावर्स होती हैं विच वी वांट टू सर्च. तो ही वाज जस्ट वर्किंग ऑन दैट. 21 डेज तक इन्होंने मेडिटेशन किया. दैट वाज द स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन. और उस मेडिटेशन को करने के 21st डे में, और ही वाज जस्ट लाइक फास्टिंग चल रहा था इनका, कंप्लीट फास्टिंग, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट पे थे, माउंटेन के ऊपर चले गए थे. एंड यू नो 1800s के अंदर, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 1890 की बात है, तो उस टाइम के आसपास जब रेकी का ये इन्वेंशन कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ खाया पिया नहीं था. एंड 21st डे ही सॉ कि उनको एक लाइट ने आके स्ट्राइक किया है थर्ड आई के ऊपर. दिस इज द थर्ड आई जो हमारे ब्रोस के बीच में रहता है. थर्ड आई के ऊपर कोई व्हाइट लाइट आई और उनको स्ट्राइक किया यहाँ पर. एंड ही सॉ सम सॉर्ट ऑफ संस्कृत सिंबल. ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लिटरेचर पढ़ रखे थे, बहुत सारी जगहों पर रिसर्च कर रखी थी, तो ही वाज अवेयर कि ये कुछ संस्कृत से लिखा हुआ है. बट यस, इट हेल्प, जो कि सब काफी जगहों पर एंशिएंट टाइम्स में ये सारा का सारा नोटेड है कि उनको संस्कृत के ही कुछ चीजें दिखाई दी थी. एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो बड़े हुए, आगे इस चीज के अंदर बढ़े, तो उस बढ़ने के साथ साथ उन्होंने काफी लोगों को ये पावर को उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू किया. इनफैक्ट उन्होंने रेकी का स्प्रेड करना शुरू किया. उन्होंने रेकी का क्लिनिक खोला, और उसके अंदर उन्होंने रेकी का जो फर्स्ट क्लिनिक था वो टोक्यो में उन्होंने खोला 1922 में. एंड इनफैक्ट हमारी जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन की टीम है, वी हैड ऑर्गेनाइज्ड वंस जापान ट्रिप, और हम लोग डॉक्टर मिकाओ उसुई के आप ऐसे बोले कि तीर्थ, जो हमारे रेकी वालों का जो तीर्थ होता है, वो डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास हम लोग होके भी आए थे. So before he died, he taught this science to many people. बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया. इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए थे, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, बट आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. एंड देन इसके बाद ये जो तीन हमारी, आप ये समझे कि ये इनके डॉक्टर मिकाओ उसुई के बाद जिन्होंने इसको डॉक्टर हयाशी, इनको चिजिरो हयाशी हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर चिजिरो हयाशी, जिन्होंने इस साइंस को और अच्छे तरीके से इसको फैलाया. जो सेंटर में आप दिखाई दे रहे हैं स्पेक्स वाले, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई फर्स्ट मेरे लेफ्ट में आते हैं, आप लोगों के शायद राइट में आएंगे. सेंटर में जो है, दिस इज डॉक्टर चिजिरो हयाशी. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने रेकी को और मॉडिफाइड किया, उन्होंने अट्यूनमेंट प्रोसेस को रिफाइन किया.
because he also worked on this. He was a naval officer, but yes, he had that interest और उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया. उन्होंने इसके अंदर different process को भी add किया, तो उन्होंने काफी उसको refine किया, और उसी refinement को आगे लेते लेते तो यहाँ पे मैडम टकाटा ने जो वेस्टर्न कंट्रीज में इसको स्प्रेड किया. सबसे पहले ये यूएस, जापान से ये यूएस गया, यूएस से ट्रैवल होता होता ये बहुत सारे कंट्रीज में, इनफैक्ट इंडिया के अंदर ये 1991 में आया था. तो पॉला हॉरन, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कभी, तो पॉला हॉरन उसको इंडिया में लेके आए थे, लेकिन उसके बाद मेरे गुरु डॉक्टर एनके शर्मा, उन्होंने इसको स्प्रेड करना शुरू किया. तो नाउ वो ऐसे जाने जाते हैं कि ही इज द वन कि जो रेकी को इंडिया में लेके आए, बट इन एक्चुअल पॉला हॉरन 1991 में लेके आए थे. और बहुत सारे इंटरनेशनल मास्टर्स भी उस वक्त आ रहे थे. उन्हीं की टीचर हैं मिस्टर विलियम हाउ. तो मिस्टर विलियम हाउ लेके आए थे. मिस्टर विलियम हाउ से डॉक्टर एनके शर्मा एंड डॉक्टर सविता शर्मा, जो मेरे गुरु एंड गुरुमा हैं, उन्होंने सीखा. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो हम लोगों की इस तरीके से लिनेज चल रही है. सो यहाँ पर मैडम टकाटा ने पूरे वर्ल्ड में इसको स्प्रेड किया, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके साथ किए. एक्सपेरिमेंट क्या थे? लोग बीमार होते थे और उस बीमारी को क्योर करना, क्रिटिकल से लेके नॉर्मल, जो हम लोग सर्दी जुकाम खांसी, जिसके लिए हम लोग एक टैबलेट को सोचते हैं कि इट्स इजी, बट सर्दी खांसी जुकाम को भी लेके ही शी ट्रीटेड. तो ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए. तो दिस वाज द स्प्रेड. तो अभी इस रेकी के सेशन में हम लोग सीखने क्या वाले हैं, टॉपिक्स कवर करते हैं. 2 पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड दिस लेवल. एक पार्ट आज है और एक पार्ट कल है. तो आज के पार्ट के अंदर, दिस इज पार्ट 1, आज हम ऑरा के बारे में थोड़ा जानेंगे. अभी हमने रेकी का इंट्रोडक्शन देखा, एंड आफ्टर दैट हाउ वी कैन सी ऑरा, हाउ वी कैन फील ऑरा, एंड हाउ वी कैन क्लीन सेल्फ एंड अदर्स ऑरा, एंड हाउ वी कैन क्लीन द लोकल बॉडी पार्ट ऑफ द ऑरा. इट्स इजी, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत सारा नहीं है. रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है, कुछ नहीं भी आएगा, समझ में आएगा तो आई एम हियर, क्वेश्चन आंसर राउंड में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. एंड सेकंड पार्ट, कल हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं. तो कल सबसे पहले तो जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, 12 o'clock सेशन है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग शार्प 12 o'clock से हम लोग स्टार्ट कर लें, 12 noon. ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट बाय शार्प. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कोई मत आना प्लीज. ठीक है. अट्यूनमेंट फिर हम लोग आई जस्ट वांट कि हम लोग टाइमली स्टार्ट कर लें. 15 मिनट्स का मेडिटेटिव सेशन होगा. उस मेडिटेटिव स्टेट के अंदर फ्रॉम डिस्टेंस, बिकॉज आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, सो आई कैन परफॉर्म attunement from the distance itself, and we are being taught in our system कि हम mass attunement कैसे कर सकते हैं. तो एक साथ में इतने सारे लोग भी अगर बैठे होंगे तो we can perform the attunement. attunement मतलब शक्तिपात. और वो शक्तिपात क्या होता है? हर इंसान के 7 चक्रास होते हैं. इतना तो सबको पता होगा कि चक्रास होते हैं, कहाँ पर है उसकी कोई वो नहीं, उसका नाम भी नहीं पूछ रहे. तो 7 चक्रास जो होते हैं, मास्टर हैज गॉट लॉट ऑफ सिंबल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस सिंबल्स एंड देयर इज अ प्रोसीजर, वी जस्ट अट्यून अ पर्सन. और उस अट्यूनमेंट के दौरान आप लोगों का शक्तिपात होता है, जिससे कि आप एक रेकी चैनल बन जाते हैं. इट इज नॉट आवर एनर्जी, इट इज अ डिवाइन एनर्जी. और ये डिवाइन एनर्जी के हम एक चैनल, इट्स लाइक नल किसी और का है, नल किसी और का है, टैप किसी और का है. वी आर जस्ट अ पाइप, वी आर जस्ट अ पाइप, वी आर जस्ट अ मीडियम, वी आर नॉट द सोर्स. तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं हो सकती. जो अभी मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, जो हमें पहले हील करना चाहिए. इट इज जस्ट सिंपल कि रेकी इज द सेफेस्ट हीलिंग मोडालिटी. इट इज नॉट आवर एनर्जी. इफ यू इन्वॉल्व इमोशनली विद एनी हीलिंग, तब वहां पर बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस हम वहां पर अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं. लेकिन जब आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वी आर जस्ट अ रेकी चैनल, इट इज नॉट आवर एनर्जी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, divine is guiding us to help others, so in that case you pass on the energy. और जब आप उस एनर्जी को पास करते हैं तो it does not harm anyone, it is the safest mode of energy. ठीक है. तो इसके अंदर हम लोग आगे लोकल बॉडी पार्ट, 24 बॉडी पार्ट्स जो कि डॉक्टर चिजरो हयाशी ने इन्वेंट किए थे कि 24 बॉडी पार्ट्स, उसके अंदर थोड़ा सा और रिफाइनमेंट हुए हैं, लेकिन यस 24 बॉडी पार्ट्स हैं. चक्रा हीलिंग भी इसका एक मेन पार्ट होता है कि आज के टाइम में हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि 24 बॉडी पार्ट, दैट मीन्स 3 मिनट्स ईच हम कर पाए, तो 72 मिनट्स का वो प्रोसीजर होता है. सो इंस्टेड वी हैव जस्ट मेड इट चक्रा बैलेंसिंग अगर कर सके, चक्रा हीलिंग, सो दैट्स इनफ. वीक में एक बार आप फुल बॉडी हीलिंग कर सकते हैं. क्रिस्टल
एंड हीलिंग कनेक्शन, क्रिस्टल्स के साथ हमारा हीलिंग का, हमारे ऑरा का क्या कनेक्शन है, हाउ दे वर्क फॉर अस, तो वो हम टेक्निक इसके अंदर सीखेंगे. देन कोई भी अगर बेड रिडन पर्सन होता है, अगर कोई उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसका भी तो एनर्जी क्लीन करना है, तो वो एनर्जी क्लीनिंग सिस्टम हम इसके अंदर सीखेंगे. तो कुछ और भी अगर इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, कुछ और भी चीजें होंगी. एंड डिस्कनेक्ट करना होता है कि हीलिंग करने के बाद डिस्कनेक्शन होता है, तो अपना कनेक्शन बन जाता है. फिर ऑरा क्लीन करते हैं तो अपने आप को कैसे क्लीन करना है. तो दीज आर जस्ट द नॉर्मल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग. सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ रेकी. अब आप लोग जान ही गए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. किसी भी छोटा से छोटा पेन हो, टेंशन हो, माइंड की कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी इश्यूज आ रहे हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम से लेके मेंटल लेवल से लेके फिजिकल इमोशनल सभी लेवल पर ये काम करती है. तो इसके बेनिफिट्स न्यूमरस हैं. और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप लिविंग बींग्स को तो हीलिंग कर ही सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग को भी कर सकते हैं. ठीक है, आप एग्जाम में जाते हैं, आप अपने पेन को, कॉपी को, रजिस्टर को, एग्जाम को, आप उसको भी हील कर सकते हैं. आप अपने वाटर को चार्ज कर सकते हैं, अपने खाने की और प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द healing power, healing energy. So when we are talking about the good vibrations, so Reiki is the good vibration. So you can always pass on the good vibrations and you can देखो बहुत सारे लोग, बच्चे इसीलिए सीखते हैं कि वो अपने लिए हीलिंग कर सके और उनको अपना ब्रेन, अपनी मेमोरी, अपना फोकस, कंसंट्रेशन हाई करना होता है. तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग, यू कैन ऑलवेज डू दैट. फाइन. ऑरा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. ऑरा इज आवर एनर्जी फील्ड. और वो कैसा दिखता है, इट्स लाइक एन ओवल शेप. हर इंसान के पास वो ऑरा होता है. ऑरा इज विद एवरीवन. हमारी फ्रीक्वेंसी, वी बीइंग ह्यूमन, हम बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लो एनर्जी के ऊपर रेडिएट करते हैं. और ये एंशिएंट टाइम से ही इट वाज जस्ट बीइंग बिलीव्ड कि हर किसी का ऑरा होता है. ऑरा अगर आपको बात बताए तो इट्स लाइक कोई भी अगर साधु महात्मा कभी भी किसी विलेज में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होते, तो पहले जमाने में होता ये था कि व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो जो पक्षी होते थे, बर्ड्स, वो ज्यादा जल्दी चहचाने लग जाते थे. एंड दैट वाज द इंडिकेशन दैट सम गुड सेंट और गुड पर्सन इज कमिंग, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी आत्मा कोई यहाँ पर ट्रैवल करने वाली है. तो दैट वाज एन इंडिकेशन. एंड इनफैक्ट दूर कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बर्ड्स को इतनी जल्दी सेंसेशन हो जाता है, दे जस्ट फ्लिकर, वो बहुत जल्दी उड़ना शुरू कर देती हैं, चहचाना शुरू कर देती हैं. उनको इंडिकेशन हो जाता है. व्हाई? बिकॉज दे सेंस द ऑरा, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल दीज वाइब्रेशंस. और इसी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, आजकल हम लोग इतने टेक्निकल हो चुके हैं, इसी वजह से ये छोटी छोटी बर्ड्स हमारे यहाँ रिहायशी इलाकों से गायब हो चुकी हैं. तो ये यही चीज है कि दिस इज द ऑरा एंड हाउ इट वर्क्स. तो इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. एज वी हैव 7 चक्रास, तो 7 चक्रा के बेस पर हमारे लेयर्स होता है, बट दैट इज एन एडवांस थिंग, अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे. लेकिन अगर आपने कोई भी कैलेंडर के ऊपर अगर देखा हो, कोई भी साधु महात्मा होते हैं ना, उनके पीछे आपने एक सर्कल सा देखते हो आप, देयर इज अ सर्कल. व्हाट इज दैट? Actually, this is their aura. This is the aura. Though we are not able to see that with the naked eyes, हम आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं. It requires lot of practice to see aura, to feel aura. But yes, this can be done with the regular practice. Even you can see the colors of the aura as well. हर इंसान के अपने अपने colors होते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी energy होती है, किसी के level पर. क्योंकि ये जो हमारे चक्रास के कलर रहते हैं, उन्हीं चक्रास के कलर्स के ऊपर ही हमारी बॉडी का कलर, कि कौन सा चक्रा हमारे ऊपर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, दैट काइंड ऑफ कलर वी रिफ्लेक्ट. ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारे कलर्स पे डिफाइन होते हैं. अब इसके 2 मेन पार्ट्स रहते हैं. ऑरा के भी हमारे 2 मेन लेयर्स रहती हैं. कैसी? अगर हम चक्रा और इस लेयर की भी बात अगर छोड़ दें, तो वी हैव 2 ऑरास. वन इज द इनर ऑरा, जो हमारे इनसाइड में, जो हमारी बॉडी से बिल्कुल क्लोज, हमारे 6 to 7 इंचेस, हमारी बॉडी से खाली 6 to 7 इंचेस यहाँ पे फ्लोट करती है. दैट्स लाइक अ वेरी क्लोज, उसको हम बोलते हैं इनर ऑरा. दैट्स आवर इनर ऑरा. एंड द आउटर ऑरा इज एक हेल्दी बीइंग का अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 फीट होता है, एक हेल्दी बीइंग का. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पहचान होती है. देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो टू चेक द ऑरा. आप अपने हाथों से भी इस एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कल अट्यूनमेंट के बाद उसका आपको वेट करना पड़ेगा. बट यस, यू कैन ऑलवेज सेंस दैट. बट इनर ऑरा को चेक करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कि आप सिंपल अपने हाथों से उसको अगर स्कैन करेंगे, यू कैन बी एबल टू फील दैट. इट इज जस्ट अ वेरी लाइट स्लाइट वाइब्रेशन. आई गाइड यू कि कैसे करना है उसको चेक. तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहता है हमारा.
everyone has got aura. Of course every living being है ही है aura. आपने कभी डायमंड की पिक्चर देखी है, उसके चारों तरफ देखते हैं ना कि थोड़ा सा लेयरिंग बना होता है, एक कलरफुल सी इमेज बनी होती है. तो एवरीथिंग है. अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो एटम के बारे में आप जानते होंगे. एटम के अंदर भी होता है ना न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें उसके अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब उसके अंदर सर्कुलेट करता रहता है. तो एवरीथिंग इज एनर्जी. हर कुछ है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. अब हम पेन को हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या पेन के अंदर जान है? नो. लेकिन फिर भी हम उसको हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज ऑल्सो एटॉमिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स को हम चेंज कर सकते हैं. वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर भी, क्योंकि वाटर का भी एक एनर्जी फील्ड है. अगर आप उसको लव की वाइब्रेशंस दोगे तो वो वाटर उसी तरीके से काम करेगा. उसको आप मंत्रास पढ़ोगे, किसी के लिए हीलिंग के लिए काम करवाओगे तो वो हीलिंग के लिए काम करेगा. आफ्टर वी लर्न दिस, रेकी का ट्यूनमेंट कल हो जाएगा. उसके बाद हम लोग वाटर चार्ज, फूड चार्जिंग का प्रोसीजर हम लोग कल देखेंगे. तो ये जो आउटर ऑरा होता है, दैट्स अ क्वाइट लॉन्ग, क्वाइट वाइड, वो काफी बड़ा होता है. तो हम उसके ऊपर काम नहीं करते. अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं दैट इज इनर ऑरा, जो हमारी बॉडी के पास में है. अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो सबसे पहले हमारे ऑरा के अंदर रिफ्लेक्ट करती है. और वो ऑरा के अंदर आने से कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को हेवीनेस भी फील होती है. स्कैन करके वो आप पता लगा सकते हैं. तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे ऑरा पे है और बॉडी में नहीं आई है तो हम ऑरा क्लीनिंग करके और अपनी बॉडी को टाइमली चार्ज करके, कई बार ऐसा होता है कि ऑरा लीक भी होता है. वो लीक कैसे होता है? क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इट. ड्रेन होने का पर्पस, एक मेंटली अगर किसी की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, कोई रो रहा है, कोई सैड है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो उस केस में वो एनर्जी, ऑरा एनर्जी डिप्लीट होती है. हम मर क्यों जाते हैं? हम मर जाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कोई जान नहीं रहती ना, हमारा कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करता. तो वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा ऑरा वैनिश हो जाता है. वैनिश्ड ऑरा मीन्स वी आर डेड. if we are alive, that means our aura is there and we can always improve it. We can always work on this. तो ये ऑरा हम कैसे कैसे इसको, अब सबसे पहली बात आती है कि ये ऑरा गंदा भी हो जाता है. ये गंदा होता कैसे है? अब सपोज करिए कि हम लोग बहुत कॉमनली एक एग्जांपल लेते हैं इसको, कि कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं विच इज वेरी नेगेटिव. कुड बी पॉसिबल, अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में गए, 2-3 घंटे आपने वहां पे स्पेंड किया, एंड व्हेन यू कम बैक, नॉर्मली पीपल फील कि भाई बहुत हेवीनेस हो रही है, हेडेक हो गया. एक तो ये हमारा बहुत ही कॉमन एग्जांपल रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स जाती है किटी पार्टी के अंदर, एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक फिर उनको हेडेक हो रहा है. फिर सुबह निकले हुए हैं और 2-3 घंटे पोल्यूशन में होके आए, एंड देन उसके बाद अगेन कमिंग बैक, अरे यार आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरी एनर्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि हमारा एनर्जी, हमारी बॉडी, हमारा ऑरा डर्टी हो गया है. ठीक है. और ऑरा इज व्हाट? हमारी प्राण शक्ति. और हमारी प्राण शक्ति ने अब्सॉर्ब कर ली. क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज पॉजिटिव, हर पर्सन के अंदर वो सकिंग पावर होती है. तो अगर हम अपने ऑरा को सील एंड प्रोटेक्ट करना अगर सीख जाएं और उसको क्लीन करना सीख जाएं, तो वो प्रॉब्लम होगी नहीं. व्हाई यू फील फ्रेश आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, व्हेन यू टेक शावर यू फील फ्रेश. व्हाई डू यू फील दैट? It is just because we have cleansed it. वो cleansing process है हमारा. That's the reason it was being asked from the ancient times कि आप सुबह उठ के नहाए. वो नहाने का जो process होता है that is also cleaning the aura. लेकिन अगर इसी process को आप अपने हाथों से अगर कर सके without using water, अगर कहीं पर आप ऐसी जगह जहाँ पर आप नहा नहीं सकते, जहाँ पर आप कुछ ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है, so you can just use it with your own hands. ठीक है. सबसे पहले हम लोग ऑरा को फील करते हैं आज. ऑरा को फील करने का जो प्रोसीजर होता है, एक तो फिंगर मेथड होता है, एंड दूसरा होता है हमारा अपने पाम के बीच में फील करने का. ठीक है. 2 टेक्निक से हम ऑरा को चेक करेंगे. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्क्रीन. आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? ठीक है. सबसे पहले हम लोग सब अपने जस्ट सिट स्ट्रेट. ठीक है. जहां पर भी बैठे हैं जस्ट कंफर्टेबली. अगर आप आलती पालती मार के बैठे हुए हैं दैट्स ओके, दैट्स फाइन. इफ यू वांट यू कैन जस्ट अनक्रॉस योर लेग्स. ठीक है. मैट जरूर डाल लीजिएगा. अगर आपके पैरों के नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यू आर जस्ट, आपकी जो भी एनर्जी आप करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो वो ग्राउंडिंग हो जाएगी. सो डोंट डू दैट. ठीक है. मैट डाल लीजिएगा. अगर आप डायरेक्ट फर्श के ऊपर है, कारपेटेड एरिया हो, दैट्स वंडरफुल. नहीं है कुछ भी तो कोई टाल ले लीजिए,
कोई भी कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ कोई भी हल्का सा पतला सा कपड़ा दुपट्टा कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथों को सिंपल अपने सामने रखेंगे, ठीक है। अब हाथों को दोनों रब करेंगे, अपने एल्बोज को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना है, बी कंफर्टेबल, आराम से जस्ट रब योर हैंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गन शूट करेंगे, ठीक है। अब हम अपने हाथ को ना इस तरीके से, जैसे हम गन बनाते हैं ना, गन बनाएंगे, ठीक है, आराम से, इजी। अब अपनी दोनों फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर को दूर करेंगे, सेपरेट करेंगे, और जितना हो सकता है ना उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, जितना दूर ले जा सकते हो उतना ले जाए, ठीक है। एक पॉइंट के बाद जहां पर आप ले गए उसको, अब उसके बाद छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स, अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, एंड डू नॉट ट्राई कि वो दूर ही रहे। अगर वो पास आ रही है तो लेट इट बी, अगर वो पास आ रही है तो लेट इट बी, if it is coming closer, let it be, if it's coming closer, let it be, just do it this way. आई, तो ये है क्या, ये एनर्जी है। अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सेंस करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक पावर जो बोलते हैं कि क्यों होती है, हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है। इफ यू सी somebody, अगर if you're traveling, whenever you are traveling, if somebody sees you, you automatically look back. Why is that happening? वो ऐसा होता क्यों? बिकॉज यू आर जस्ट, यू नो, योर ऑरा इज सेंसिंग दैट एनर्जी, और उस सेंस की वजह से आप उसकी तरफ पलट के देखते हो। दैट पर्सन हैज नॉट सेड एनीथिंग, वो आपको जानता भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको पलट के देखते हैं। या अगर किसी ने अचानक हमें देख रहा और हमारी नजर मिली, वो स्माइल करेगा, तो वो एक पॉजिटिविटी ऑफ ऑरा, कि हमारा ऑरा उसके साथ मैच कर रहा है। एंड समटाइम्स इट हैपेंस, किसी ने अगर स्माइल किया तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, हम मुंह बना के दूसरी साइड में कर लेते हैं। तो that's another thing कि ऑरा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को पहचानता है। Sometimes you feel I am not able to sit with these kind of people. Why you are feeling so? Because of the aura, because the energies are not matching. ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रोसेस से, अब हम लोग हाथों के बीच में ऑरा को फील करेंगे। अगेन हम लोग अपने हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करना है, क्योंकि जो हमारे पाम चक्रास है हमें उनको एक्टिवेट करना है। ठीक है, पाम चक्र जब हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर अब हम उसको अपने हाथों को थोड़ा सा वाइड करेंगे और एक दूसरे के सामने, एग्जैक्टली सामने 1 और 2 फीट दूर सामने, उसको एक दूसरे के सामने, पाम के सामने लेके आएंगे। आई जस्ट डू इट रिड्यूस, क्योंकि आप स्क्रीन पे मेरे को देख सकते हैं। एंड जस्ट क्लोज योर आईज, स्लोली स्लोली जस्ट फील कि अगर आपको कोई टिंगलिंग सेंसेशन, कोई टिकलिंग हो रहा है, if you're feeling anything, heaviness, just feel it. This is your energy ball. अपने हाथों को पीछे से, जहां पर आपको ये प्रेशर फील हो वहां पर आके आपको रोक देना है। From the far, when you are coming closer in front of both the palms, अब वहां पर उस हाथ को वहीं रोक दें और just feel it from up and down, from all the directions. If you are able to feel an energy ball, if you're feeling that both the palms are repelling, जिनको भी ये फील हुआ है they can just write in the chat box yes. जिनको भी ये फील हो चुका है, it is just simple that दोनों पाम को अपने सामने रखना है, सामने रखते हुए जहां पर भी, wherever you are feeling that there is a pressure and you are able to feel an energy ball, just stop there and try to rotate it. Try to check it from the up and down, and keep both the hands
up and down. Just rotate your hands up and down and just check it between your palms. आप लोग चैट बॉक्स में लिख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, लिख पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। ओके ओके, आई वाज नॉट एबल टू सी। वेरी गुड। ये सब मेरे पास आ रहे हैं मैसेज। ओके, जिनको जिनको फील हुआ, सुलभा एंड अलका जी, तेजस्विनी, भारती, वन्ना, संध्या, शिल्पा, मिलनप्रीत, श्रुति, कुसुमा, दीपा, पद्मा, प्रीति, I can feel there is something. Yes, that is what we, मनोरमा जी, प्रियंका. So most of you, आप लोगों को सबको फील हुआ. सरिता जी, आपको फील हुआ? तो this is what the energy field is. Same way, आप अपनी बॉडी को अगर पास से अगर आप चेक करेंगे तो you can feel that energy. आपको वो पता चलेगा कि आपकी एनर्जी है. If you want, आप अपने आईज के चारों तरफ अगर रखेंगे तो आपको वहां पर भी पता चलेगा, बिकॉज योर बॉडी हैज एनर्जी. आप जहां पर भी उसको फील करना चाहेंगे, इट इज जस्ट कि आपको अपने पाम पे. एंड दिस प्रोसेस एनीवन कैन डू इट, चाहे वो रेकी चैनल हो या नहीं हो. दिस प्रोसेस इज फॉर एवरीवन, कोई भी कर सकता है. तो इसको करने के लिए रेकी अटूनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसके लिए खाली आपको अपने हैंड्स को रब करना है. एनर्जी, ये जो पाम चक्रास होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. फाइन मोटर स्किल्स, ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, इसकी वजह से हमारे ये चक्रास बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? चलिए अब हम लोग मुझे डाउट है कि हमें फील करने के बाद क्या हम लाइक दूसरों का भी कर सकते हैं फील, और हमें फील करने के बाद क्या करना है? आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट. एक्चुअली फील करना तो ये था कि यू just check it कि ऑरा है कि नहीं है, whether it exists or not. That's it. So that if somebody will ask, you know that how exactly it is. ये repel करता है, कैसे जाता है, कैसे ऑरा होता है. So that's it. Nothing else. कोई लंबा चौड़ा साइंस नहीं है इसके अंदर. Just to feel it. कि जब आप फील करते हो कोई भी एनर्जी, how exactly, what is the pressure, ये आपका खुद की एनर्जी है. So कितने लोगों ने पहली बार अपनी एनर्जी को खुद से महसूस किया ऐसे? ये अभी तक फील आ रहा है इनफैक्ट. आता है. और ये बार बार करोगे, और इनफैक्ट आप अपने घर में और लोगों को भी बताओगे. दिस इज द वेरी गुड टेक्निक, वेरी गुड टेक्निक. इनफैक्ट जो लोग बिलीव नहीं करते ना ऑरा एंड ऑल दिस चक्रा वगैरह, साइंस कुछ नहीं होता है, तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. आस्क देम टू डू इट. इफ दे आर एबल टू फील दिस इज लाइक अ कॉटन बॉल, व्हेन यू प्रैक्टिस इट यू फील लाइक इट्स अ कॉटन बॉल. और फिर उसके बाद देखो अपने हाथों को छोड़ दो कि वेयर इट इज गोइंग. एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि ये 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक जाती है. ये स्प्रेड करती है. आप कितना पीछे तक जाते हो ना, तो वो प्रेशर आपको फील होता है. दैट मींस दिस इज योर एक्चुअल एनर्जी फील्ड. ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा. कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज सी दैट. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ऑरा को देखना कैसे है. ऑरा को देखने का प्रोसीजर के ऊपर हम आएंगे. ऑरा को देखने का प्रोसीजर ये है. अब आई एम जस्ट गोइंग टू डिम सम लाइट. ठीक है, या तो आप लोग मेरी थर्ड आई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. आई जस्ट पिन दिस. और इसको करने का प्रोसीजर ये है कि जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज. और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो खोलने के बाद मेरी थर्ड आई पर आप चेक करना. और मेरी थर्ड आई पे चेक करने के बाद जस्ट ट्राई टू सी कि मेरी बॉडी के आसपास में चारों तरफ, मेरे सर के आसपास, इफ यू आर एबल टू सी एनी एनर्जी लाइन, कुछ भी अगर आपको नजर आता है तो आई जस्ट कम लिटिल क्लोजर. अगर कुछ भी आपको ट्रैवल करता हुआ कोई भी वाइब्रेशन अगर आपको महसूस होती है, जस्ट फील इट. अगर आपको कुछ दिखता है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन माई थर्ड आई.
अगर किसी को कुछ भी दिखाई दिया तो आप खाली thumbs up मैडम कर दीजिए। ओके, मैडम व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है आपके चारों तरफ। वाइट दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। भारती जी को नहीं दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम। देखो, ये ऑरा देखना इज नॉट अ बिग थिंग कि देखना ही चाहिए। अगर किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता, कुड बी पॉसिबल। मेरा मेरा हो सकता है कि मेरी तरफ से आपका कनेक्शन नहीं बन पाया हो, या फिर ऑरा देखना इज नॉट एन ईजी। आप इसकी प्रैक्टिस सिंपल कैसे कर सकते हैं? आप मिरर के सामने खड़े हो जाएगा, जस्ट गो एंड स्टैंड, डिम कर दीजिएगा थोड़ी सी लाइट एंड जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई। जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई। मिरर में देख के जस्ट ट्राई टू सी एंड अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? दिस इज अनदर प्रोसेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डू इट कि व्हाइट बेस हो, जैसे वॉल वगैरह कोई व्हाइट हो, देन उसके बाद जस्ट ओपन योर हैंड लाइक दिस और अपने फिंगर के चारों तरफ आप देखने की कोशिश करना। कंसंट्रेशन के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस कि जो बच्चे होते हैं वो अपने नेल्स के दोनों साइड में जो हमारे होते हैं क्यूटिकल्स जहाँ पे रहते हैं ना, उस क्यूटिकल वाले एरिया को यहाँ पर देखें एंड दे जस्ट डू इट। तो ये फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। छोटे बच्चे जो कि एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो दे कैन ऑलवेज डू इट। थंब को अपने सामने ऐसे रखें, वॉल के सामने। स्ट्रेस नहीं करना है अपने नेक को या आईज को, स्ट्रेस नहीं करना है, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर सम टाइम। और इधर यू कैन जस्ट स्प्लैश सम वाटर स्प्लैश करें, आपकी आईज थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगी। देन उसके बाद जस्ट रिलैक्स, 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। 3-4 मिनट प्रैक्टिस करिए डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है? ड्यूरिंग द डे 2-3 times you can do it. So it's not something that which is required. It is just on the basis of your interest. If you want to do it, if you want to, develop this thing, you can always do it. It is just कि आपका clairvoyance activate हो जाता है, क्योंकि थर्ड आई के ऊपर आप जितना वर्क करते हैं तो आपका clairvoyance, आपकी intuitive abilities आपकी strong हो जाती हैं. That's it. Fine. चलिए आगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हाउ टू सी ऑरा। हमारा हो गया ये नोट्स भी। आई विल जस्ट क्रिएट अ पीडीएफ फाइल। जिन लोगों ने भी रेकी की क्लास आज ज्वाइन किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड देम ओनली। तो जिन लोगों ने भी आज रेकी का क्लास ज्वाइन किया है, वो लोग मेरे को अलग इसी नंबर पे एक बार पर्सनल मैसेज कर दें, उसके तभी आई कैन बी एबल टू प्रोवाइड देम द नोट्स, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट फॉर कंसंट्रेशन, यस, 5 year old बच्चे के लिए मत बोलिए। 5 year का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो नहीं कर पाएगा कॉन्सेंट्रेट। आप उसको सीधा सीधा बोलो कि आप उसको स्टार गेजिंग के लिए बोल दो, आप उसको मून गेजिंग के लिए बोल दो। बच्चे बहुत खुश होके करते हैं ये काम, उनको बस इतना ही करने के लिए बोलिए, नथिंग एल्स। उनको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। ओके, सबसे पहले हम लोग अदर्स ऑरा क्लीनिंग करना सीख रहे हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग। साइड बाय साइड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम टेक्निक है। सबसे पहले आपको अपने हाथों को रब करना है। हम अपने हाथों को रब करेंगे, रब योर पाम्स। अब आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर टिप के ऊपर भी हमारे बहुत छोटे छोटे चक्रास होते हैं, मिनी चक्रास। वी नीड टू एक्टिवेट दोस फिंगर टिप्स। सो हम 1 by 1 अपने सारे फिंगर टिप्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? अपने ऑपोजिट वाले पाम के ऊपर, पाम के सेंटर पे हर एक फिंगर को 4 to 5 times, 7 times आप एक्टिवेट करिए, ठीक है? एक्टिवेट दोस। जब आपके राइट साइड के पाम के हो जाए तो लेफ्ट साइड के, वाइस वर्सा, यू नीड टू डू इट। इट इज जस्ट वी आर एक्टिवेटिंग इट। अब हमें ऑरा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती क्यों है? अगर ऑरा क्लीनिंग की अगर बात करें, एक घर है, बहुत सुंदर सा घर है और उसके अंदर बहुत सारी विंडोज हैं एंड दोस विंडोज आर डर्टी, तो वो घर आपको देखने में अच्छा लगेगा? घर देखने में, घर के अंदर धूप आएगी, सनरेज आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, डार्कनेस हो जाएगी। लेयरिंग ऑफ डस्ट बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और फिर क्या होगा कि वो एकदम डार्क हो जाएगी। और वो डार्क होने से क्या होगा? इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, वायरस घर के अंदर घुसेंगे क्योंकि वो डर्टी है। सो ऑरा क्लीनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ये सारे ऑर्गन्स हैं और हमारे अंदर वो उलझ गए हैं। हमारी एनर्जी फील्ड कई बार उलझी रहती है, तो वी जस्ट नीड टू करेक्ट इट। और अब हम कैसे करते हैं?
देयर आर 2 प्रोसेस टू इट। इस ऑरा क्लीनिंग के अंदर 2 प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम अपने फिंगर्स को सबको इस तरीके से खोलेंगे, जस्ट लाइक अ कॉम्ब की तरीके से खोला, और हम 3 टाइम्स कोम्बिंग करते हैं, फ्रंट बैक। कोई अगर स्टैंडिंग पर्सन है उसके सामने, फ्रंट से करते हैं, बैक से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, कोम्बिंग 3 टाइम्स। जब कोम्बिंग हो जाती है उसके बाद हम लोग कपिंग करते हैं, और कपिंग करने के लिए हमने अपने पाम्स को कप शेप में बनाना होता है, जस्ट लाइक अ कप शेप। ठीक है, कप शेप बनाने के बाद हमने उसको गैदर करना होता है, ठीक है, उसको इकट्ठा करना होता है 3 टाइम्स। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो 3 टाइम्स। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन, जैसे अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज फॉर मी। इफ आई हैव प्रॉब्लम, अगर मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अनइजीनेस हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन डू इट मोर, बहुत ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन यस, अभी के लिए 3 टाइम्स हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। आई जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, आपको वो समझ आएगा उसके अंदर। और जब हम ऑरा क्लीन करते हैं, जब हम कपिंग करते हैं, स्पेशली कपिंग करने के बाद जो हमने डस्ट निकाली है, जैसे हम डस्ट समझ लीजिए, दिस इज जस्ट लाइक अ डस्ट। तो जो डस्ट आपने इकट्ठी करी है, जो नेगेटिविटी, द नेगेटिव ऑरा, क्लटर, तो उसको अपने हाथों में लेना है और उसको आपको यूनिवर्स में, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, वी आर द यूनिवर्सल बीइंग, तो हम लोग यूनिवर्स को ये एनर्जी वापस देंगे। और हमारे माइंड में ये थॉट रहेगा कि आई एम सेंडिंग दिस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स विल क्लीन इट एंड प्यूरिफाई। ठीक है, और यूनिवर्स को हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोगों ने करना है। तो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस, तो ये आप वीडियो देख लो। इसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपको लगता है कि यस दिस इज फाइन, इसके आगे हम सेल्फ ऑरा आज नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, आई विल लीव दैट। तो अभी हम लोग पहले अदर्स ऑरा क्लीन करना देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आई विल स्टार्ट दिस। आप इस तरीके से 5 फिंगर्स लेके भी एक साथ आप उसको पाम के बीच में कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव समबडी इन फ्रंट ऑफ यू, साथ साथ आप करते भी रहो, साथ साथ करते रहो, सो दैट यू कैन विल रिमेम्बर दिस। फ्रंट से किया कोम्बिंग, Actually, പൊങ്ങൂല. നമുക്ക് എനിക്കിന അല്ല അമ്മയുടെ പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം വന്നത്, പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം വന്നത്. ഇത്രയും മസിലേ വരുള്ളൂ म्यूट हो चुका है। ഇത് കയ്യിൽ ബിഗ് ആയതിനു ശേഷം കയ്യില്ലാത്ത ഉടുപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാമേ, മസിലി കിടക്കാൻ. Now we are going to do this cupping. पहले combing किया, now cupping. Front से 1, sending to the divine, 2, sending to the divine, 3, sending to the divine. जो आपके सामने खड़ा हुआ है, आप धीरे धीरे उसको रोटेट कर सकते हो अपने सामने। 2, collected, sending to the divine for the purification. 3 times. Done. The same way cupping process, it's like कोई मूर्ति को जैसे हम झाड़ते हैं, तो वो झाड़ के हम लोग उसको नीचे ला रहे हैं। We are just sending it to the divine and sending to the divine. Then last, sending to the divine, sending to the divine. A person को सामने लाके उसको थैंक्स करेंगे, बिकॉज थैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हाथों को खुद से क्लीन करना है, क्योंकि आपने क्लीन किया है तो आपके पास भी, आपका भी ऑरा डर्टी हो गया, तो आप भी उसको डिवाइन में भेजेंगे। थैंक्स करेंगे डिवाइन लाइट का, डिवाइन एनर्जी का। और हमारे नेवल से किसी के साथ भी अगर हम कोई भी कनेक्शन बनाते हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं, कहीं बाहर से भी आते हैं, तो हमें नेगेटिव एनर्जी हमारे नेवल के साथ एक कॉर्ड बन जाती है, इनविजिबल कॉर्ड। सो वी नीड टू कट दैट। जब भी आप आते हैं, आपको हेवीनेस अगर फील होता है, तो यू जस्ट नीड टू कट दैट एनर्जी। और उसको हम कट कैसे करते हैं? अपने नेवल से, जस्ट लाइक दैट।
अपने नेवल से यहाँ पर देखिए और अपने हाथों को क्रॉस पोजीशन में रख के 3 टाइम्स से कट कट एंड कट, डिस्कनेक्टेड लाइक दिस। अगर इन केस कई बार आपको ऐसे फील होता है कि अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, यू आर फीलिंग हैवी और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो इन दैट केस यू कैन डू इट। कभी भी कर सकते हैं, कट कर, खाली सिंपल कट भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपको लगता है नजर हो गई या कोई प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है आपको कि बार बार नजर लग रही है, तो जस्ट कट इट। और हम अपनी नजर उतारते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स टू इट, बट ऑरा क्लीन करके आप एक बार कट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप चाहे तो अपने हाथ को वॉश भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इफ यू डू नॉट वांट कि आपको अपने हाथ से ऑरा क्लीन करने के बाद इफ यू वांट कि मुझे जाके वॉश करना है, तो यू कैन जस्ट रब। सैनिटाइजर मत लगाइएगा, वी अवॉइड सैनिटाइजर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ये हो गया फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग। एक बार इस प्रोसेस को मैम, वापस, सॉरी मानसा जी, ये कट करने के पहले वो करना है क्या, जो हैंड्स रब करते हैं और वो सब? नहीं नहीं कुछ नहीं करना। ये वीडियो आपको, ये आपको पूरा स्लाइड मिल जाएगा, वैसे उसके अंदर ये वीडियो नहीं रहेगा। वीडियो के लिए आपको ये रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा, तो यू कैन जस्ट वॉच इट अगेन। ठीक है, सबसे पहले हमने जब हैंड रब्स किए थे, फिंगर ट्विस्ट करी थी, एनर्जाइज किया था, उसके बाद हम लोगों ने सामने जो हमारे सामने जो पर्सन था, हमने उसके फोरहेड के ऊपर ऐसे अपना राइट पाम रखा था। व्हाई वी डिड दैट? क्योंकि हमने उसको बोला कि भाई आई एम गोइंग टू डू योर ऑरा क्लीनिंग, प्लीज एक्सेप्ट इट। ठीक है, कोई भी एनर्जी, अगर हम कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हम पहले तो उसको बता चुके हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने गया है तो हम उसको और अटेंटिव कर रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट दैट आई एम वर्किंग on behalf of divine energies for your highest good. I'm just cleaning the aura. Please accept it कि आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। आप अपनी कोई भी इसकी स्पेसिफिक कोई प्रेयर नहीं है, आप सिंपल उसको ये बोल सकते हो, भाई मैं तुम्हारा ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ, आपका ऑरा क्लीन होगा, एक्सेप्ट दीज पॉजिटिव एनर्जी। सिंपल, कुछ भी आप उसको अपने हिसाब से बोल सकते हैं। जब आपका ये कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके माथे पे वापस से हाथ रख के, फोरहेड पे हाथ रख के यू कैन से थैंक यू, क्योंकि उसने आपसे एक्सेप्ट किया है ना, ट्रस्ट करा है, आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो थैंक यू। तो सेम थिंग इज विद दैट पर्सन कि उसने आपसे ऑरा क्लीन करवाया। कई बार हम लोग अननोन लोगों से भी ऐसे काम करवाते हैं जो हमें नहीं होता, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो दैट्स इट, वो एक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है? अब हम लोग सेल्फ ऑरा, हाँ जी पूछिए डाउट पूछिए। मैं डॉक्टर मालविका, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सपोज सामने वाला कन्विंस्ड नहीं है रीकी को लेके, तो आप क्या फोर्सफुली कर सकते हैं? देखो वो डिपेंड करता है, अगर फोर्सफुली आप करना चाहते हो वो डिस्टेंस से हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है और सामने वाला पर्सन अगर नहीं कर सकता, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। अभी हम लोग पास से करेंगे, तो हम आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो हाउ टू चार्ज द वाटर, हाउ टू चार्ज द फूड। सो इन दैट केस यू कैन जस्ट टर्न दैट एनर्जी ऑफ द पर्सन बाय गिविंग द चार्ज वाटर एंड द चार्ज फूड। बिकॉज कहाँ जहाँ इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं ना, तो उसका मुझे लगता है कि एडवांटेज भी नहीं होता है, राइट? देखो एडवांटेज की बात होती है कि मेंटल ब्लॉक आ जाता है, जहां पर भी हमारा मेंटल ब्लॉक आता है ना, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, तो वो चीज पेनिट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगती है। कैन यू एंटर somebody's house when you are not invited? You can't No. enter. So the energies are very sensitive. They are also like that. Until unless a person is not ready to accept it, it's not working. In certain scenarios की person कोई बहुत ऐसी critical condition में है wherein person cannot provide his consent, his or her consent. So in that case, it is our duty to ask his soul. लेकिन that too वो हमारा second level के बाद आता है। Second level रेकी का, जिसके अंदर हम लोग distance healing सीखते हैं। With the help of symbols, we make the connection. अभी हम लोग लेवल 1 में हैं, तो लेवल 1 में हम लोग खाली टच करके हीलिंग करते हैं। यहाँ पर खाली हम लोग वाटर चार्जिंग एंड फूड चार्जिंग करके ही पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। और जो आपने बोला कि व्हेन वी थ्रो बैक टू द यूनिवर्स, जब भी हम ऑरा क्लीन करते हैं, तो वो हमें कपिंग के कोम्बिंग के बाद भी करना है, कपिंग के बाद भी करना है, या फिर एक ही बार कपिंग? अच्छा, दोनों के बाद करना है। देखो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है, देखो इट्स ऑल योर विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। इफ यू थिंक कि मैं यहाँ पर एक बार वंस आई विल जस्ट कलेक्ट द एंटायर डस्ट एंड आई विल थ्रो इट ओनली वंस, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सारा इकट्ठा कर लो एक ही बार में एंड देन उसके बाद थ्रो। ठीक है, कपिंग भी कर ली, कोम्बिंग भी कर ली, एक बार में रख लिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं सारा का सारा एक ही बार में डिवाइन को थ्रो करूंगी,
कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाथ नहीं चल रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एबल टू डू इट, सो दे कैन डू इट दिस वे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर टेक्निक. इफ सामने वाला जो पर्सन है, द पर्सन हु आस्क्ड टू गेट दिस ऑरा क्लीन, वो पर्सन खड़ा नहीं हो सकता है, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट आस्क देम कि आप बैठ जाओ, चेयर पे बैठ के आप उसका ऑरा क्लीन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आराम से वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, जो ऑरा क्लीन कर रहा है, इफ यू आर क्लीनिंग द ऑरा, इफ यू आर फाइन, इफ यू आर फिजिकली ओके, देन यू कैन डू इट. ठीक है, अगर आपको खुद को प्रॉब्लम हो रही है तो आई प्रेफर कि अगर आप खड़े होके किसी का ऑरा नहीं क्लीन कर सकते, सो इन दैट केस डोंट डू इट. लोकल बॉडी पार्ट आप कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग लोकल बॉडी पार्ट से पहले हम लोग अपना ऑरा क्लीन करना सीख लें. आर यू रेडी फॉर द सेल्फ ऑरा क्लीनिंग? सीखे? ठीक है, सेल्फ ऑरा क्लीनिंग के लिए आप लोग सब मेरे साथ ही खड़े हो जाइएगा. ठीक है, आप लोग को सबको जस्ट बोल थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को अब वापस से रब करेंगे. वही हमने रबिंग करनी है. फिंगर्स को आप वन बाय वन भी रब कर सकते हैं, आप चाहे तो एक तरह से कलेक्ट करके यू कैन ऑल्सो डू इट. डायरेक्ट फ्लोर पे तो नहीं खड़ा होना ना? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं खड़े होना. इफ यू आर वेयरिंग दिस रबर का चप्पल पहन के भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि डायरेक्ट अर्थिंग नहीं हो, आपकी डायरेक्ट अर्थ के अंदर ना जाए, अदरवाइज वो एनर्जी भी ग्राउंडिंग हो जाती है. ठीक है, दिस वे यू कैन डू. अब आपके हाथ अगर चार्ज हो गए हैं लेफ्ट एंड राइट बोथ विद द फिंगर टिप्स, तो इट इज जस्ट सिंपल. हमारा हाथ पीछे नहीं जाएगा, वी कांट बी एबल टू ट्विस्ट आवर हैंड्स पीछे. तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को पीछे जहां तक ऐसे, ये जो है ना, ये यहाँ पर हम ऐसे रखते हैं उल्टा करके शोल्डर्स के पास. आई जस्ट शो यू, देखो इस तरीके से. और हम आईज क्लोज करके वी जस्ट इमेजिन कि हमने अपना ऑरा पीछे से अपने टोस से उठा लिया एंड इट हैज कम. और यहाँ पर हमारा फिंगर्स ओपन है, फिंगर्स ओपन है. ठीक है, एंड आई एम स्क्रैचिंग फ्रॉम द फ्रंट, आई एम स्क्रैचिंग फ्रॉम द फ्रंट. जहां तक आपका हाथ आराम से जा रहा है नीचे तक, वहीं तक आप करें. एंड जस्ट इमेजिन कि आपके टोस तक, फ्रंट आपके टोस तक यू हैव कलेक्टेड एंड यू हैव टेकन द डर्टी ऑरा. आपने मुठिया बना ली है उसकी, यू हैव जस्ट कलेक्टेड इन योर पाम, फोल्डेड एंड जस्ट थ्रो इट इन डिवाइन. ठीक है, विल जस्ट डू इट अगेन. हम फिंगर्स ओपन है, हमने यहाँ रखा, पीछे से हमने देखा कि वी आर जस्ट कलेक्टिंग इट. सर के ऊपर से घूम के, सर के ऊपर से घूम के हम आए, इसको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया एंड मुठियां भर के वी आर जस्ट थ्रोइंग इट अपसाइड डिवाइन में फॉर द प्यूरिफिकेशन. वंस अगेन फ्रॉम द बैक, जस्ट कलेक्ट दिस एनर्जी फ्रॉम द बैक, फ्रॉम योर हेड, सर्कुलर मोशन, standing position, collect this energy and throw it divine. Fine. अब हम अपने लेफ्ट साइड से, या अगर आप राइट हैंड से कर रहे हैं पहले, तो राइट हैंड की साइड से ओपन योर पाम, जैसे आपने कोई कटोरा पकड़ा हुआ हो. इट्स लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग. अपने इस साइड से सोचेंगे कि लेफ्ट साइड से उठा के यू हैव जस्ट क्लीन्ड इट, अपने सर के ऊपर से लेके इस साइड से लेके आ गए. You have just collected. अब हमने sides clean कर रहे हैं, तो this is hand movement would be towards the right side. Collected the energy, throw it to the divine. Do it 2 more times. Throw it. Third time. Throw it. Then this side. Second time, throw it. Third time, collect it and throw it. अब हम अपने हाथों को कप पोजीशन में रखेंगे, कपिंग. ठीक है, we just need to do the cupping. Back of the head, the same way we did it. फ्रंट से लेके आए, सर के ऊपर से स्क्रैच करते हुए सामने से आके जस्ट कलेक्टिंग दिस. जहां तक हमारे हाथ खड़े होके कंफर्टेबली, वी आर जस्ट
Just need to move it. जहां तक आ रहा है, collect this, do it to the divine. Again, do it. Back of the head again. Front, come. Collect this, throw. फिर से पीछे से आए, वापस सर के ऊपर से टर्न करके. Pull the toes. Just visualize that you have collected front and back दोनों से collected. Throw it to the divine. अब same process. Left side, right side से. Collect the energy. Throw it to the divine. Collect the energy. Throw it to the divine. Collect the energy. Throw it to the divine. Collect the energy, throw it to the divine. Collect the energy, throw it to the divine. And once again, last time, collect the energy, throw it to the divine. अब हमने अपनी पूरी बॉडी का ऑरा क्लीन कर दिया. सपोज अगर हमें कोई लोकल बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लोकल बॉडी पार्ट है, किसी को कोल्ड हो सकता है, किसी को कफ हो सकता है, किसी को थ्रोट में पेन हो सकता है, किसी को हार्ट में पेन हो सकता है, किसी के कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है, नीज में हो सकता है. तो जैसे भी अब जहां पर भी सपोज करो कि अगर मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. यहाँ पर कोम्बिंग एंड कपिंग मेरी ऑलरेडी हो चुकी है. फुल बॉडी ऑरा इज अ मस्ट टू डू द लोकल बॉडी पार्ट. ठीक है, पहले आप फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग करेंगे, कपिंग कोम्बिंग हो चुकी है. अब यहाँ पर खाली मेरे को इसको झाड़ना है. इट्स लाइक हाथ में अगर मेरे पेन है, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, 1 2 3 4 5, collect, throw it to the divine. 1 2 3 4 5, throw it to the divine. In case अगर मेरे को हेडेक हो रहा है, तो how I am going to do it. अगर मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है, पूरे सर में दर्द हो रहा है, तो how I am going to do it. मेरे को अपने दोनों हाथ ऐसे रखने होंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 5, collect, throw it to the divine. 1 2 3 4 5, collect, throw it to the divine. ठीक है. अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर मेरे को पेन खाली इस साइड में है, इस साइड में, अगर मेरे राइट साइड में पेन हो रहा है, तो मेरे को राइट साइड का ऑरा क्लीन करके लेफ्ट साइड में नहीं फेंकना, लेफ्ट साइड का करके राइट साइड में नहीं फेंकना. जिस साइड का ऑरा आपने लिया है, जिस साइड का भी क्लीन किया है, उसी साइड में यू नीड टू थ्रो इट टू द डिवाइन. ठीक है, गॉट इट. जिस साइड का किया है उसी साइड का आपको फेंकना है. सपोज करो कि मेरे स्टमक में यहाँ पर पेन है, या मेरे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है यहाँ पर, तो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ का क्लीन करके मेरे को इस साइड में नहीं फेंकना, यहाँ का क्लीन किया तो इस साइड में फेंकना, टुवर्ड्स द सेम साइड. ठीक है, तो इट्स जस्ट वी नीड टू फॉलो इट. ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट. अब हम लोगों ने अपना फुल बॉडी किया, लोकल बॉडी पार्ट किया. अब हमारे हाथ डर्टी हो गए, अब हमने अपने हाथों को भी क्लीन करना है. तो हमने अपने यहाँ से अपने एल्बो से लेके क्लीन करना है पूरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अपने हाथ को आगे पीछे टर्न करते रहिए एंड जस्ट थ्रो इट टू द डिवाइन. ठीक, जैसे आप कोई चीज झाड़ रहे हैं. देन अगेन लेफ्ट टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Collect, throw it to the divine. And thanks to yourself, thanks all the universal energies. Thank you for purifying the aura. Thank you for making me energetic. Thank you for making me healthy. Thank you. You can just sit comfortably. ठीक है, अभी आप लोगों की किसी को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मेरे से पूछिए. एक तो किसी का ऑरा क्लीन करने से पहले आई थिंक ये ऑब्वियस है कि हमें अपना ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, राइट. ये तो ऑब्वियस है. दूसरी चीज है, सोते टाइम बच्चों का कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं, सोते टाइम कर सकते हैं. इनफैक्ट कोई बेड रिडन अगर कोई पर्सन है जो उठ नहीं सकता, तो आप उसका बैक, अगर बैक तो क्लीन नहीं होगा उसका, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जिसका आप सोते हुए में के पर्सन का बैक से अगर क्लीन नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके आप जहां पर जो भी आपकी एक्सेसिबिलिटी है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, दैट्स इट, क्लीन इट लाइक दैट। उसके पहले भी उनसे नींद में परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, उस केस में आप खाली, क्योंकि अगर कोई अनकॉन्शियस है पर्सन, इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, या फिर बहुत ओल्ड एज वाला है, उसको पता ही नहीं है, आप समझाओगे फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, सो इन दैट केस जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी सेक डू इट ऑन योर ओन। और जैसे बच्चों के लिए वो सो रहे हैं तो उनसे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट छोटे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे समझ जाते हैं, आप उनको खुद भी बोल सकते हैं कि यू कैन जस्ट टीच देम cleansing hands after cleansing ourselves or others. Do we need to throw the aura in the same side, or any side is fine? No, when you are cleaning the aura of the right side, just throw that energy towards the right side up, and when you are doing it towards the left side, so left side collect it and throw it towards the upside. If you have severe, Manjula ji, severe knee pain, how to do the cleaning? See, knee का भी simple procedure है, जिस भी knee में problem हो रही है, left में right में, clean the aura, 1 2 3 4 5, collect it, throw it. और इसको कितनी बार करना है? You can do it in 5 multiple 5 के उसमें आप 50 टाइम्स भी कर सकते हो, 100 टाइम भी कर सकते हो। स्किन एलर्जीज में, छोटी मोटी प्रॉब्लम में, हेडेक में, फीवर में, दिस वर्क्स वंडरफुली। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज ऑरा इज हैवी। जब हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स ऑरा इज हैवी, सो उस ऑरा को आपको क्लीन करना होता है। किसी का ओके, ठीक है, ऑरा बस वहां पर हेवी हो जाता है। तो आई थिंक ऑरा के बारे में सब लोगों ने जान लिया। किसी का कोई भी और क्वेश्चंस हो आप पूछे। हाँ जी, क्या कुछ टाइम ये लोग हम लोग डेली बेसिस पे करें? यस। देखिए, रेकी कल हम लोग सीखेंगे, लेकिन रेकी करने से पहले आपको अपना ऑरा क्लीन करना जरूरी है। व्हाई? क्योंकि आपके सेंसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि कपिंग कर रहे हैं, कोम्बिंग कर रहे हैं, तो वाइब्रेशंस पेनिट्रेट्स, दैट गोज इनसाइड डीपली। तो उसको जाने से पहले, इफ यू आर क्लीनिंग इट ऑन योर ओन ऑन डेली बेसिस, दैट विल हेल्प यू, दैट विल एनहांस योर ऑरा, दैट विल एनर्जाइज यू, दैट विल हेल्प यू टू एनर्जाइज। अगर आप सुबह जैसे हम लोग नहाते हैं ना, क्यों नहाना जरूरी है? तो वो नहाने का प्रोसेस, नहाने के बाद जब हम पूजा करने जाते हैं, तो पूजा करने से पहले इफ यू कैन जस्ट डू इट, इट जस्ट टेक हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं लगते, ठीक है। फीट पेन, जैसे भी अगर फीट में भी पेन हो रहा है, तो सेम वे आप अपने फीट को अपनी नी के ऊपर रख लें, क्योंकि वो अगर आप फीट को लंबा करेंगे तो वो बहुत दूर हो जाता है। तो इफ यू आर एबल टू फोल्ड इट, देखो यहाँ पर मेरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, आई डोंट नो, देखो लेट मी शो यू। इस तरीके से अगर आप अपनी फीट को इस तरीके से अपनी थाई के ऊपर भी रखें, एंड देन ऑल्सो यू कैन क्लीन इट, ठीक है। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, दिस कैन ऑल्सो बी डन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फीमेल प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी टाइम में आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको खुद को फीवर हो रहा है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, you are having pain in your hands, आपको पेन हो रहा है and you are not able to do it, there is no mandate कि आपको सबका करना ही करना है, you just do it your own। अगर आपको ऐसा लग रहा है you are not comfortable today, you don't want to do your full body aura cleaning, and if you are having pain only in just your knee में है या elbow में है, तो उसी जगह का आप aura clean करो, local aura clean करो, it's okay, ठीक है। any doubt, any questions? बैक पेन के लिए देखिए, बैक पे हमारा हाथ नहीं जाता है, better would be you can ask somebody, you can just tell them कि आप इस तरीके से aura clean कर दो, उनको सिखा दीजिए, वो कर दें। if they are not able to do it, तो second level में we have this procedure कि हम अपना aura distance से भी कैसे clean कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए first level के लिए you just need to ask somebody, आप उनको सिखा दो कि भाई तुम इस तरीके से खाली combing करते रहो, and you just do it, ठीक है। एक और चीज सिखाते हैं, एक और नई चीज आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? यस, इसको क्या हम ओपन स्पेस में करें, बालकनीज वगैरह में तो ज्यादा बेटर है, या रूम में ही ओके रहेगा? देखिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग हियर। अब हम ये बोले कि भगवान कहाँ है, कहाँ है? सब जगह। तो आप किधर भी ऑरा क्लीन करें, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपको अगर कोई ओपन जगह मिल जाती है तो दैट मीन्स वो एनर्जाइज आपका अच्छे से हो जाता है। बट येस, समटाइम्स पीपल फील कॉन्शियस
the open areas. And when you are conscious, so you are not able to concentrate. And when you are not able to concentrate, you won't be able to do the perfect cleaning. So wherever you feel comfortable, if you feel that while sitting in front of your God, if अगर आपके घर में मंदिर है, and if you want to sit there and वहां पर बैठ के आप aura clean करना चाहो, that's perfectly all right, do that. उसके लिए कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई जगह नहीं है कि आपको किसी ओपन स्पेस में जाना है, कहीं आपके अंदर, आप भगवान के ही तो बनाए हुए हो, तो आपके अंदर कोई इतनी कोई नेगेटिविटी थोड़ी ना आ गई। और अगर नेगेटिविटी है तो आप उसको क्लीन करने के लिए डिवाइन में भेज रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एक और चीज है, ऑरा क्लीन करने का एक और प्रोसीजर होता है। वो ये प्रोसीजर होता है कि इन केस इफ यू डू नॉट वांट टू थ्रो इट टू द डिवाइन, इन केस देयर इज अनदर प्रोसेस कि आप अपने सामने एक नमक के पानी का घोल, नमक इज व्हाट, दिस इज योर सेंधा नमक, वी कॉल इट रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वाटर के अंदर जस्ट एक आप 2-3 स्पून ऑफ रॉक सॉल्ट को आप मिक्स कर लो, वो बहुत इजीली पानी जैसा ही हो जाता है। एंड आफ्टर क्लीनिंग द ऑरा, जो आपने डर्ट इकट्ठी करी है, यू कैन जस्ट थ्रो इट इन दैट सॉल्ट वाटर, आप उसके अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप उस सॉल्ट वाटर, और एक ही साइड में रखना है, इफ यू आर थिंकिंग कि मैंने राइट साइड का किया है और ये तो मैंने लेफ्ट साइड में रख लिया, कैसे करूं, तो आप उसको सेंटर में रख लो, ठीक है। आप उसको अपने बॉडी के सेंटर में रख लो। इफ यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर क्लीनिंग, तो सेंटर में डाल लो, तो वो सॉल्ट वाटर उसको अपने आप नेगेटिविटी को सक कर लेगा। एंड आफ्टर डूइंग द ऑरा क्लीनिंग, यू हैव जस्ट थ्रोन इनटू दैट सॉल्ट वाटर, आप उस पानी को लेके जाओ, उसको फ्लश कर दो, ठीक है। और उस यूटेंसिल को या जिस भी टब को या जो भी आपने वो पॉट वगैरह लिया, उसको थोड़ा सा पानी से, फ्रेश वाटर से एक बार उसको करके क्लीन करके, एंड देन जस्ट वॉशिंग के लिए आप उसको रख दो, ठीक है। इफ यू वांट, आफ्टर डूइंग द एंटायर वर्क, यू कैन आल्सो वॉश योर हैंड्स। आप सोप से चाहो तो सोप से कर सकते हो, इफ यू आर नॉट यूजिंग सोप, आप बेसन वगैरह से, कुछ भी चीज से, नॉर्मल टैप वाटर से भी आप अपने आप को क्लीन कर सकते हो, इट्स ओके, डजंट मैटर, ये आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। देयर इज वन मोर थिंग, आप ऑरा को क्लीन करने के लिए, किसी के पास मोर पंख होते हैं, हैव यू सीन दैट गुरुद्वारे के अंदर वो कैसे झाड़ा लगाते रहते हैं? वो होता क्या है, आप क्यों इतना अच्छा फील करते हो गुरुद्वारे जाते हो तो, या फिर कोई भी ऐसे रिलीजियस प्लेस में जाते हो तो व्हाई यू फील दैट? जो हमारे यहाँ जो म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस होती है ना, तो दीज आर आल्सो क्लेंजर, ये ऑरा प्यूरिफिकेशन करते रहते हैं। मंत्रा चैंटिंग और आल्सो दिस ऑरा प्यूरिफिकेशन दैट एनहांसेस द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस। So of course we can't do it, हम घर का ऑरा पूरे तरीके से क्लीन नहीं कर सकते, in first level we can't do it, but yes, कोई भी good music vibration you can just play for 15 to 20 minutes, you will see the change of energy. And जहां पर भी आपके पास मोर पंख हो, if you do not want to use your hands, आप मोर पंख का एक बड़ा वाला बंच ले लो, 10-15 उसको टाई कर लो किसी भी चीज से, and this way you can do it. और उसको सॉल्ट वाटर के ऊपर उसको आप टैप टैप कर दो, या फिर आप डिवाइन में उसको थ्रो कर दो, this can also be done, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 टेक्निक्स हैं। एंड ऑरा क्लीनिंग करने के बाद, अपना ऑरा क्लीन किया तो हमें नेवल से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इफ वी आर क्लीनिंग somebody else's aura, either we are cleaning the full body or the local body part, you need to cut from the navel 3 times cross, अपने इसको scissors की पोजीशन, scissors जैसे रखना है, जैसे नाइफ है, 2 blades coming from left and right, cut from your navel, cut cut cut, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज, चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसको क्या हम बेस्ट वे क्या है, सॉल्ट वाटर और डिवाइन? एज पर द अवेलेबिलिटी, अगर आप कंफर्टेबल जगह पर है जहां पर आपको सॉल्ट मिल सकता है, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक मिल जाता है, ब्लैक सॉल्ट मिल जाता है, वॉट एवर काइंड ऑफ सॉल्ट यू आर यूजिंग, अगर वो मिल जाता है इट्स गुड, क्योंकि सॉल्ट अपने आप में नेगेटिविटी सकर है। इफ यू आर कैरिंग द सॉल्ट एंड ट्रैवलिंग, तो यू अट्रैक्ट द नेगेटिविटी, सो इंस्टेड वी आस्क कि यू डू नॉट कैरी द सॉल्ट एंड ट्रैवल, वी से इट दिस वे। रेस्ट बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सॉल्ट थेरेपीज भी करते हैं, सो यू कैन जस्ट चेक इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉल्ट अगर घर में है तो आप सॉल्ट वाटर से कर लो। आप किसी के घर पे हो, इफ यू आर एट समबडी एल्सेस प्लेस, और वहां पर अगर आपको सॉल्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती, किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको रॉक सॉल्ट नहीं मिला और कोई बहुत ही ज्यादा सिक पर्सन है,
तो उसका ऑरा हम लोग डिवाइन में नहीं थ्रो करते। बहुत ज्यादा सिक पर्सन है कि बहुत ही सीवियर किसी को फीवर हो रहा है, बहुत तेज फीवर है, या किसी को कोई अनकॉन्शियस जैसी स्टेट में है, सो इन दैट केस आप जो भी सॉल्ट आपको जैसा भी अवेलेबल हो, चाहे वो आपको जो टाटा नमक। हाँ कोई भी जो आपको मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो भी जैसा भी सॉल्ट मिल जाता है, जस्ट उसको आपको डबल क्वांटिटी में रखना है, ठीक है। उसको डबल क्वांटिटी आप उसको अच्छे से ले लो, फिस्ट भर के आराम से आप उसको 5-6 टेबलस्पून 10 टेबलस्पून उसको अच्छे से मिला लो, एक बकेट हाफ बकेट पानी भर लो, एंड टाल उसको गीला करो उस सॉल्ट वाटर के अंदर, टाल को गीला करो। उसके ऊपर से जैसे हम लोग कोई मूर्ति झाड़ते हैं, जैसे सपोज करो कि लेट मी ब्रिंग इट आउट, देखो ऐसे टॉल मिल जाता है, हैंड टाल आपको कहीं पर भी मिल जाता है, कहीं होटल में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी, या किसी के घर पे भी इजीली मिलेगा। अब आप इसको फोल्ड करके छोटा कर लो इतना, ठीक है। आप उसके 4 पीसेस 4 स्क्वायर्स में आप उसको कर लोगे तो दिस विल बिकम लाइक दिस। इसको आपने सॉल्ट वाटर के अंदर डिप करना है अच्छे से, उसको आप ऐसे ट्विस्ट करके आप उसको निचोड़ लो, सारा एक्सेस वाटर निकल जाएगा। दिस वाटर ये जो है उस पर्सन के ऊपर, जैसे आप ऑरा क्लीन कर रहे थे हाथों से, तो सेम वे उसके ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए जस्ट ब्रिंग इट, और इसको वापस से डिप करना है उसी पानी के अंदर, फिर से इसको ट्विस्ट करना है 3-4 टाइम्स। आप आराम से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। आप जितना ज्यादा उसको करोगे, अगर कोई फीवर है, बहुत तेज फीवर है, बेड रिडन पर्सन है, सो दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस। आप इससे अगर उसका दिन में 2 बार 3 बार अगर ऑरा क्लीन करोगे तो यू विल सी द चेंजेस। फीवर के अंदर तो इमीडिएटली फर्क लगता है। किसी को टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, किसी को ये आजकल जो चलते हैं, जो भी फीवर्स हमारे हो जाते हैं, सीजनल फीवर्स होते हैं, तो उसके अंदर आप ये रेगुलर आराम से कर सकते हो, ठीक है। टाल को सॉल्ट वाटर के अंदर डिप करना है, प्रेफरेंस हमारी रॉक सॉल्ट है। अगर रॉक सॉल्ट नहीं मिलता है तो जो भी सॉल्ट अवेलेबल हो यू कैन जस्ट यूज इट, ठीक है। टाल, हैंकी, कोई भी कपड़ा जो आपको अवेलेबल हो जाए आप उसको ले लीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है, इफ यू हैव योर दुपट्टा यू कैन जस्ट यूज दैट एज वेल, ठीक है। वाटर के अंदर डिप करना है, पर्सन के ऊपर टॉप टू बॉटम उसको लेके आना है, देन अगेन डिप 5 टाइम्स तो मिनिमम है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स एज पर योर स्टेमिना, यू कैन जस्ट डू इट। आप खुद देखोगे वो जो वाटर है वो स्टिकी हो जाएगा, जितना पर्सन सिक होगा और उसका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा, दैट वाटर विल बिकम स्टिकी एंड द डर्टी। आपका टाल धुला हुआ है और फिर भी वो डर्टी हो रहा है, व्हाई इज दैट? सो बिकॉज ऑरा इज गेटिंग क्लीन, नेगेटिविटी सफर है वाटर, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? So in case of if my like child is suffering from loose motions, I can do this. हाँ हाँ आराम से, What can आराम I से। do? What can I do for him? You can just simply dip this towel or hanky whatever you have in the salt water and just उसके stomach के ऊपर से full body आप उसको करो, full body करो। In fact उसको हो रहा है तो natural remedy आप उसके लिए करो ही करो। यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ कोच हैं डॉक्टर वंदना, तो शी कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। आप क्वेश्चन डालो ग्रुप के अंदर तो शी विल गाइड यू। हाँ जी, वेलकम। यस, यहाँ पे तेजस्विनी आपने क्वेश्चन लिखा, टिल टुडे आई डिड नॉट नो व्हाट इज ऑरा क्लीनिंग एंड हाउ इट इज डन, बट व्हाट आई लर्न टुडे वाज डूइंग same from my mind from last 2-3 years. Now I really believe that I am here for a reason. Thank you so much. Thank you so much. How to do, भूल गई, how to do what, how many times? अच्छा 3 times front से cupping combing, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। I'll just create the link and I'll share it, ठीक है। ग्रुप के अंदर ही फॉरवर्ड कर देते हैं। जो लोग अगर आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो वो लोग अगर कल भी ज्वाइन करना चाहे, रेकी का जो मेन सेशन है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, बिकॉज आफ्टर गेटिंग द अट्यूनमेंट देन ओनली यू कैन जस्ट पास ऑन द हीलिंग। दिस ऑरा क्लीनिंग एनीवन कैन डू, ऑरा क्लीनिंग एनीवन कैन डू। यू कैन जस्ट टीच दिस सिंपल थिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। आपके घर में मेड सर्वेंट आते हैं ना, तो यू कैन इवन टीच देम एंड हाउ दे कैन डू इट। दिस वे यू कैन जस्ट हेल्प अदर्स टू। हाँ, हाउ डू वी नीड टू टच देयर स्किन विद ताल? अच्छा देखो, स्किन टच करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी अनकंफर्टेबल है, पर्सन हैज गॉट फीवर, तो थोड़ा सा ऑरा लेवल पे, जैसे हमने बताया ना कि 6 to 7 इंचेस पर हमारा जो इनर ऑरा रहता है, तो आप थोड़ा सा ऊपर, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर करके आप उसको डैप डैप करके आप
उसको ले आए. Do not touch the body. If person is not comfortable, do not touch. Thank you so much, Deepa. Thank you. More questions, please. Malvita ji, how many levels of Reiki are there to reach to the master level? Actually, it has 3 levels. I'll tell you. Reiki first level is self and others healing because it is a very vast science because of the symbols. Second level is something with the help of symbols, you can make a distance connection from anyone. So whatever healing, what we are doing in first level, which takes approximately 72 minutes, that can be done with distance healing in just 15 minutes. That is the power of the symbols. तो वो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू कैन लर्न साइड बाय साइड, दोनों एक साथ भी सीख सकते हो. दैट ऑल डिपेंड्स कि मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर एनके शर्मा, ही टीचर्स दिस वे ओनली. फर्स्ट लेवल सिखाया एंड उसके सेकंड डे सेकंड लेवल दिखाया. बिकॉज वी बिलीव कि जब सिंबल्स की पावर आ जाती है तो दैट वर्क्स वेरी नाइसली. बहुत पावरफुल आपका हीलिंग प्रोसेस रहता है. क्योंकि फर्स्ट लेवल के बाद जो 21 डेज का रेकी प्रैक्टिस रहता है, वहां पर लोग थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं. थैंक यू सो मच रंजना. थैंक यू संध्या जी. थैंक यू. चलिए ठीक है, सेशन क्लोज करिए. अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क. अनम्यूट करके प्लीज आस्क. Yes, during the pregnancy it is a very good thing to do. आप बिल्कुल करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बिकॉज चाइल्ड जो मदर होती है ना, उसको क्यों हम लोग कोई भी चीज टाई करने के लिए बोलते हैं, क्यों मंत्रास वगैरह या फिर उसको रेड धागा वगैरह क्यों पहनाते हैं, बिकॉज दे आर थ्रोन टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी सो इजिली. सो इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं जा रहा. आप बैठे हुए हो ना, आप अपने स्टमक को ऑरा क्लीन करना. आपको जहाँ पे भी पेन हो रहा है वहां का करो. आप बैठे बैठे अपना चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, आप आराम से ऑरा क्लीन कर लो. दैट्स इट, यू कैन डू इट. प्रेग्नेंट women, no problem. Very good for you. You're welcome. मैम, लोकल बॉडी क्लीनिंग करने के पहले हमें फुल बॉडी क्लीनिंग करना रिक्वायर्ड है, लाइक मैंडेट है? ये देखो, it is a must, it is required, but if in case you are not able to, some days we feel that no, I am feeling drained out, I am not able to do my full body. कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में I did not get time, लेकिन I am just feeling like before sleeping I just want to, मेरे को हेडेक हो रहा है, I just do not want to take medicine, so I just want to clean. So local body करो, no problem. मैम, तो उसमें पहले कपिंग करेंगे एंड देन कोमिंग करेंगे, देन कपिंग करेंगे एंड देन वी विल हाँ, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑरा वेव्स है. ऑरा इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन क्या होती है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इट इज एंटेंगल्ड. सो वी नीड टू ओपन दोस एंटेंगलमेंट्स. एंटेंगलमेंट्स क्या, उसको सुलझा रहे हो आप. आपके हेयर भी अगर खराब हो जाते हो तो आप उसको सुलझाते हो ना, कोम्बिंग करते हो. तो दिस इज द कोम्बिंग, इज द प्रोसेस टू ओपन द थ्रेड्स, टू ओपन द एरिया एंड देन कपिंग. तो इट इज इजी फॉर कि अगर कोई बीनीथ दैट inner aura, beneath that अगर कोई entanglement हो गया, कोई problem होगी, तो that can be easily you can be able to catch that easily. Okay, thank you ma'am, thank you. You're welcome. ठीक है, can we do it anytime, day night, anytime while traveling, when you are in flight, when you are on sea, कहीं पर भी, हवा में, आकाश में, पानी में, किधर भी वो कर सकते हो. हाँ, ऑफ कोर्स स्विमिंग पूल के अंदर नहीं होगा, क्रूज शिप के ऊपर हो तो हो जाएगा. आप स्विमिंग पूल में तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका ऑरा क्लीन हो रहा है. यस. हाँ जी प्रियंका जी, ये हमारे इनका क्या रिएक्शन है, एनीथिंग? ओके, चलिए, आई थिंक सब लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया. आई जस्ट वांट टू गिव यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर टुमारो. यू नीड टू वेयर कंफर्टेबल क्लॉथिंग. 12 बजे से 2 बजे तक सेशन रहेगा. And if in case you have any doubts, maybe we'll continue our session for 3 to 4. I don't have any problem because I just want to guide you thoroughly. आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए. So practice session हमारा रहेगा. Question answers, जो भी सारी चीजें रहेगी, you can just do that. But join timely. Live breakfast रखेंगे. 2 घंटे के बीच में हमारा ब्रेक नहीं होगा, तो उसके लिए प्लीज बी देयर. ठीक है. In case जो लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए, they want to join it, they can do it. I'll share ये YouTube के ऊपर मेरा वीडियो जाएगा और उस YouTube का जो लिंक है I'll share it directly, so you can just pass on to others also if you want to give them some insights about the aura. You can just pass on this video so that this can help people. That's it. Take care. God bless you. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thanks.
वेलकम. बहुत प्यारा सेशन था, मतलब Thank you so much. प्यारा सेशन था. Thank you so much. Thank you. Take care.